Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। It's always a joy to be found in the house of the Lord. हमेशा आनंद की बात है परमेश्वर के भवन में पाई जाना। This is the best place to be in. और ये उत्तम स्थान है जहाँ पाए जाते हैं। And it's indeed an honor for us to be here this morning. और सच में ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज की सुबह हम यहाँ पर हैं। We were in Pune a couple of days ago. कुछ दिन पहले हम पुणे में थे। We had a very powerful time of ministry. और बहुत ही सामर्थ्य सेवकाई का समय हमने वहाँ पर We saw बिताया। deliverance, we saw healing. हमने छुटकारा देखा, हमने चंगाई को देखा। People have been sending messages that I got healed and out of medication. और लोग संदेश भेज रहे हैं कि मुझे चंगाई मिली है, अब दवाई बंद हो चुकी है। You know, this morning is also the morning of healing. और ये सुबह भी चंगाई का सुबह है। Today there is healing in this place. आज इस स्थान में चंगाई मौजूद है। And the Holy Spirit is telling me not only physical healing. और पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है केवल शारीरिक चंगाई नहीं। Some also need to be set free from certain habits. और किसी को कुछ तो आदतों से भी छुटकारा पाना है। Some of you are looking for new beginnings. आप में से कुछ लोग जो है नई शुरुआत के लिए रुके हैं। Some of you are so tired of being tired और आप में से लोग इतने लोग थक गए हैं, थके होने से that you want something new to happen. कि आप चाहते हैं कि कुछ तो नया हो। But the Lord is telling me He's going to disconnect some people from your life. परंतु प्रभु कहता है कि आपके जीवन से वो कुछ लोगों को निकालेंगे। Because when God moves some people out of your life, क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन से लोगों को निकालते हैं, then what He has starts flowing. तो फिर जो वो उसके पास है वो बहता है। Amen. I just want to thank every minister of God who is here. और जो हर एक परमेश्वर का दास है उसको का धन्यवाद देते हैं यहाँ पर मौजूद। You know, we are progressing in the vision that God has given us. और जो दृष्टांत परमेश्वर ने हमने दिया है उसमें हम बढ़ रहे And the हैं। vision is to evangelize, equip and empower. और हमारा दृष्टांत है सशक्त करना, तैयार करना लोगों को। And one part of the empowering we'll see this morning when our spiritual son Hemant will be ordained as a pastor. और आज जब भाई हेमंत जो है वो ऑर्डेन किए जाएंगे। That is part of our call and ministry in the vision. और ये हमारी बुलाहट है सेवकाई की और ये हमारा दृष्टांत है। And so as we walk in obedience, जैसे हम आगे कार्यता में चलते हैं we'll see the fruit of it. हम इसके फलों को देखेंगे। But tonight, this morning, whoever you are, और आज की सुबह चाहे आप जो भी हो, if you have been seeking a breakthrough in your life यदि आप अपने जीवन में बेदारी को ढूंढ रहे and हैं you want God to establish what He has begun, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो शुरू किया उसको वो स्थायी करे, today is something like a reset. और आज जो है वो पुनः स्थापित करने का समय है। It's like a reset in your life. और वो आपके जीवन में पुनः चीजों को बना रहे Because हैं। the Lord wants to do something new in your life. और प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में नई चीजों को करना। But whenever God wants to do something new, He wants you to be willing to embrace the new. और परमेश्वर जब भी चाहते हैं कि आपके जीवन में नया करे तो वो चाहते हैं कि आप तैयार रहे उन नई चीजों को लेने के लिए। Sometimes we are so glued to the old. और कई बार हम अपने पुरानी चीजों को इतने धरे रहते हैं We become very comfortable with it. और उसके हम बहुत आरामदायी स्थान में हो जाते God हैं। wants to give us a new mindset. और परमेश्वर चाहते हैं हमें नया मन वो दे He wants us to have a new heart. और वो नए हृदय को देना चाहते He हैं wants us to have His perspective. और वो चाहते हैं कि उसका नजरिया हमारे पास He हो wants us to have His vision. और उसका दृष्टांत हमारे पास हो। He wants us to believe all that He tells us. वो चाहते हैं कि जो कुछ कहे उस पर हम भरोसा करें। The Lord told us this year 2026 is going to be the year of supernatural living. प्रभु ने हमसे कहा ये 2026 वर्ष अलौकिक जीवन का वर्ष And He होगा said it's not going to end in 2026. और वो कहता है 2026 में समाप्त नहीं होगा। He said, I want this to be the lifestyle of my sons and वो daughters. चाहता है मेरे बेटी बेटी के ये जीवन शैली बन जाए, I want this to be the lifestyle of the church. ये कलीसिया की जीवन शैली बन जाए। The church should not be a crying church. कलीसिया रोने वाली कलीसिया ना हो, The church has to be a rejoicing church. कलीसिया आनंद मनाने वाली हो। The church should not be a faithless church but a faithful church. कलीसिया विश्वासहीन नहीं परंतु विश्वास योग्य हो। And so the Lord wants to bring a shift in your life. तो प्रभु आपके जीवन में बदलाव को लाते हैं। If you want a change in season यदि आपको मौसम में बदलना है and you want God to establish what you do, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को स्थायी करे, by the power of His Spirit this morning He's going to do it. उसकी आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो आज करेगा। We are not here to sing three song, clap and go home. हम यहाँ पर नहीं 3 गीत गाकर ताली बजाकर We are here to see the power of God at work. हम यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ को
कार्य करते हुए, and the Holy Spirit is setting you free और पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दे रहा for है, some habits that you had. जो कुछ आदतें आप में हैं, You know, especially in the area of finances, आर्थिक रूपी की आदत थी, I can sense the Holy Spirit is bringing you to a place of financial freedom. और पवित्र आत्मा जो है आपको आर्थिक आजादी में ले जा You रहा will है। not be put to shame. आप शर्मिंदा नहीं होंगे, You are being set free from shame. आप शर्मिंदा से आजाद हो रहे Shame हैं, of facing authorities. और जो अधिकार का सामना करने की शर्म, Shame to talking to your children and telling we don't have enough. अपने बच्चों से आप शर्मिंदा को कहते हैं कि हमारे पास बहुत नहीं है, Even though you might not have it in your hand then, और चाहे आपके हाथों में अब ना हो, you will with confidence say that my heavenly Father who is Jehovah Jireh has it. आमेन। और आप भरोसे से कहेंगे मेरा स्वर्गीय पिता जो यहोवा यीरे है उसके पास है। In 2010, our son asked us one day, और 2010 में मेरे बेटे ने मुझसे while we were पूछा, having dinner, जब हम खाना खा रहे थे, you don't want to hear such questions, especially when you're having dinner. जब आप भोजन लेते हैं तो आपको ऐसे प्रश्न सुनना पसंद नहीं Sometimes होता, your food can get choked. और कई बार आपका खाना जो अटक जाता है। Papa, you got $40,000? Who? 2010, he's asking me, do you have $40,000? 2010 में वो मुझसे पूछ रहे हैं कि $40,000 तुम्हारे पास है? Like, I don't have it, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, but my heavenly Father has it. परंतु मेरे स्वर्गीय पिता के पास है। I didn't take the pressure. मैंने वो तनाव नहीं लिया, I threw it up. मैंने ऊपर फेंक दिया, I said, God, I'm faithful, और मैंने कहा परमेश्वर में विश्वास योग्य हूँ, and I'm trusting that you will release it. और मैं भरोसा करता हूँ कि तू देगा। And God provided that year और उस वर्ष परमेश्वर ने प्रबंध किया $40,000 US $40,000 without a credit card, और बिना क्रेडिट कार्ड के, without a loan, बिना किसी कर्ज के, without any borrowing. बिना किसी को मांगे हुए। God provided $40,000 for a son to go and learn flying in the United States. परमेश्वर ने उस पैसों का प्रबंध किया हमारे बेटे को जाकर विदेश में पढ़ाई करने के लिए। God is the same God. परमेश्वर वही परमेश्वर The है। same God who in 2010 spoke to me and provided is the same God who is present today in your midst. 2010 में जिस परमेश्वर ने मेरा प्रबंध किया वही आज आपके बीच मौजूद है। God wants us to speak faith. परमेश्वर चाहता है हम विश्वास से कहें। God doesn't want us to say I don't have. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कहें कि मेरे पास नहीं है। God wants us to declare that He is our source and our resource. परमेश्वर चाहता है कि हम घोषणा करें कि वो हमारा प्रबंध करने वाला है, वो हमारा स्तोत्र है। You might have been in a messed up situation this morning. और आज की सुबह आप बहुत गड़बड़ी की परिस्थिति में You होंगे। don't know how to come out of it. आप नहीं जानते उससे बाहर आप कैसे But निकले, God is able to bring you. परंतु परमेश्वर योग्य है उसे बाहर You निकालने know के why लिए। don't people come out of their mess? और लोग अपने गड़बड़ी से बाहर क्यों नहीं आते? Because they think they are smart enough to come out of it. क्योंकि वो सोचते हैं वो बहुत समझदार है उससे बाहर निकलने के When लिए। they surrender to the Lord, जब वो परमेश्वर को समर्पित होते they say, हैं Lord, I don't know how. और वो जब कहते हैं कि परमेश्वर मैं नहीं जानता Forgive कैसे, me, Lord. मुझे क्षमा करे I प्रभु। thought I had all the wisdom. मैंने सोचा कि मेरे पास But समझदारी Lord, है, I trust in you. परंतु मैं तुझ पर भरोसा करता Trust हूँ। in the Lord with all your heart. अपने पूरे मन से परमेश्वर पर And भरोसा lean करें not onto your own और understanding. अपने समझ का सहारा ना ले। In all your ways, acknowledge Him. अपने सारे कामों में उसी को आप Don't समर्पित take करें। credit for yourself. अपने आप के लिए आप सराहना ना ले। If you start taking credit for yourself, यदि आप अपने काम की बढ़ाई you करें will progress and start taking glory for तो yourself. आप बढ़ते हुए महिमा भी अपने लिए ले लेंगे। God wants you and me to give Him the glory. परमेश्वर चाहता है आप और मैं उसे महिमा दे। That's the song that we sang. और ये गीत हमने गाया, Everything I want to give you glory. सब चीजों में मैं आपको महिमा And देता God हूँ। wants to set you free. और परमेश्वर आपको आजाद करना God चाहते wants you हैं। to carry a testimony. परमेश्वर चाहता है गवाही को लेकर It चले। doesn't matter you're a teenager. मायने नहीं तो आप छोटे हैं, God wants to set you free. परमेश्वर आपको छुटकारा देते It हैं was for freedom that Christ has set us free. और आपकी आजादी के लिए यीशु ने हमें No आजाद किया है longer to be subject to a yoke of slavery. और गुलामी के जुए के नीचे रहने के लिए नहीं। It is Satan who puts people in bondage. और शैतान लोगों को बंधुआई में डालता है। When the Lord does not want you to associate with someone, please do not associate. जब लोग परमेश्वर चाहते हैं कि आप किसी से ना मिले तो आप उनसे ना मिले। When the Lord does not want you to get in certain partnerships, don't get it.
जब परमेश्वर नहीं Don't get चाहते into कि आप उस संगति में रहे तो आप उस संगति में ना रहे। I know so many businessmen who have made wrong associations and fallen into big time trouble. और मैं ऐसे बहुत से बिजनेसमैन को जानता हूँ जिन्होंने अलग अलग तरह की संगति की और बहुत बड़ी समस्याओं But में when पड़े। they repented, परंतु जब उन्होंने पश्चाताप when किया, they turned to the Lord, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर when फिरे, they received that word from the Lord, जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, the tables were turned. जो उनकी मेजें वो फिराई गए, Because God is a God of restoration. क्योंकि परमेश्वर पुनः स्थापित करने वाला You know परमेश्वर something, है God wants to establish you. और परमेश्वर आपको स्थायी करना चाहते Many हैं। people are so engrossed establishing their own self. और बहुत से लोग अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं, But God wants to establish you. परंतु परमेश्वर आपको स्थापित करना He चाहते wants to हैं establish the work of your और hands. वो आपके हाथों के काम को स्थापित करना Whatever चाहते you हैं। do, God wants you to prosper. जो कुछ आप करें परमेश्वर चाहते हैं आप उसमें बढ़े God wants you to be the best at your workplace. और परमेश्वर चाहते हैं आपके काम के स्थान में आप उत्तम हो। God wants you to be the best businessman in town. परमेश्वर चाहते हैं कि शहर में आप सबसे अच्छे बिजनेसमैन God wants you बने to be the best student in uni. और परमेश्वर चाहते हैं कि आपके काम पढ़ाई में आप अच्छे बच्चे हो। God wants your family to be the best family in the community where you और live. परमेश्वर चाहते हैं जिस समाज में आप रहते हैं उसमें आपका परिवार उत्तम हो, Because you are called, क्योंकि आप बुलाए गए you are हो, chosen, आप चुने हुए हो, you are anointed, आप अभिषेक you are किए हुए हो appointed. और आपका नियुक्त There किया गया is है divine power that He has given you. और देव ये सामर्थ उसने आपको दी है And He has entrusted you with His work. और उसने अपने कामों से आप पर भरोसा किया He है wants you to live an offense-free life. और वो चाहता है निर्दोष जीवन आप जिए Jesus faced offense, और यीशु ने दोष का सामना किया but Jesus was not driven, Jesus was not controlled by offense. परंतु यीशु जो है वो दोष के नियंत्रण में नहीं रहे। You know, many times people want to give up serving the Lord because of offense. और कई बार लोग जो है सेवकाई करना बंद करते हैं दोष लगने के But God कारण, wants to establish you. परंतु परमेश्वर आपको स्थापित करना चाहते If you have हैं been called to serve the और Lord, आपको बुलाया गया है उसकी सेवा करने के and the लिए enemy use somebody to come and hit you. और शत्रु किसी का इस्तेमाल करता है आपको चोट पहुंचाने No, के the लिए enemy use somebody to hit you. और शत्रु किसी का इस्तेमाल करता है आप पे This प्रहार करने के morning लिए। is the morning of victory. आज का सुबह विजय का सुबह है You will not sit in what you experienced in the past. और जो भूतकाल में अपने अनुभव किया आप उसमें बने नहीं Because रहेंगे God, by the power of His Spirit, is establishing you. क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा के सामर्थ के द्वारा आपको स्थापित कर रहा है The Bible is full of people और बाइबल ऐसे लोगों से भरा हुआ whose है position, whose authority and destiny जिनका अधिकार जिनका भाग्य was established by the Lord Himself. जो परमेश्वर ने उन्हें स्थापित किया था। I'll quickly go through that. और उसके में जल्दी से हम देखते हैं Abraham, अब्राहम he was called and established by God. उसे परमेश्वर ने बुलाया था और स्थापित किया था Isaac was established in the covenant that God gave. और इसहाक जो है परमेश्वर ने जो वाचा की थी उसमें उसे स्थापित किया गया Not था। Ishmael, इश्माइल नहीं but Isaac. परंतु इसहाक God is a God who establishes you and me. और परमेश्वर आपको और मुझे स्थापित करता है। Amen. Right? We see in the Old Testament, Jacob was established by God. पुराने नियम में हम देखते हैं कि याकूब को भी परमेश्वर ने You know, स्थापित when किया। God establishes you, your identity changes. जब परमेश्वर आपको स्थापित करता है आपकी पहचान बदल जाती है Don't allow the devil to define who you are. और शत्रु को आप मौका ना दे कि बताने का कि आप कौन हैं Because God has already told you who you are. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बताया है कि आप कौन हैं You are His treasured possession. और आप उसके ऐसे नीच लोग हैं। You are the apple of His eye. आप उसकी आपकी पुतली हैं। You're not an accident. आप कोई अपघात नहीं You're not a mess up. और आप गड़बड़ी नहीं। Even if you surrender to the Lord your mess up, और यदि आप अपनी गड़बड़ी में परमेश्वर को समर्पित God रहे will bring a message out of that. और परमेश्वर उसे एक संदेश को निकालेंगे। Whoever you are this morning, और जो चाहे आप हो, you're going through pain, आप दर्द से गुजर रहे you're going हैं through brokenness, और आप टूटेपन से गुजर you're रहे standing हैं। at the crossroad of your life. आपके जीवन के दोराहे पर आप खड़े हैं Should I not? और क्या मैं करूं या ना What's करूं kept in store ahead? और आगे क्या रखा है। The Lord is telling you it's new beginnings. प्रभु कहता है नई शुरुआत है। Isaiah 43:18-19 reminds us, He says, do not dwell on the past. यशायाह 43 में कहा गया है अपने भूतकाल पर आप बने ना रहे। See, I am doing a new thing. देखो मैं नई चीजें करने पर हूँ Not the way you see, जैसे तुम देखते हो वैसे नहीं not the way I see. जैसे मैं देखता हूँ वैसे When नहीं। the Lord says, when you see the way I see, प्रभु कहते हैं जैसे जब तुम देखो जो मैं देखता you will हूँ see differently. आप अलग तरीके से देखोगे। Joshua, यहोशू come up the mountain. और आप उस पहाड़ पर चढ़ो। See, देखो I have given you Jericho. मैंने तुझे यरीहो दिया है।
You see, the enemy does not want you to see what God wants you to see. शत्रु चाहता है कि आप वो ना देखें जो परमेश्वर चाहते हैं आपको देखना। God is a God of restoration. परमेश्वर पुनः स्थापित करने वाले You are परमेश्वर not हैं। forgotten. आप भूले हुए नहीं हैं। So in the Old Testament, पुराने नियम there was में Abraham, अब्राहम, Isaac, इसहाक, Jacob. याकूब, His identity was changed. और उसकी जो पहचान बदल He गई was थी। called Israel. उसे इजराइल बुलाया गया। Hallelujah. हालेलुया। Some of you need an identity change this morning. आप में से कुछ को आज की सुबह पहचान बदलनी है, Because the enemy has battered you so much क्योंकि शत्रु ने आपको इतना मारा है that you forgot who you are. कि आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। You are living by the opinions of others. आप लोग दूसरों के निर्देशन से जी रहे हैं। God wants you to be set free. परमेश्वर चाहते हैं आपको छुटकारा देना। Isaac इसहाक, became Israel. Jacob became Israel. याकूब जो है इजराइल बना। God changed his name, परमेश्वर ने उसका नाम बदला, changed his identity. उसकी पहचान को बदला। Moses was established by God to lead his people out. परमेश्वर ने मूसा को स्थापित किया उसके लोगों को बाहर निकालने You के have लिए। been called by God for a God purpose. आपको बुलाया गया है युद्ध के उद्देश्य के लिए। Listen, I have news for you. You're not living for the sake of living. और अब सुने, आप जीने के लिए नहीं जी रहे हैं, You're living for purpose. आप उद्देश्य के लिए जी रहे हैं। Your life has a purpose. आपका जीवन का एक उद्देश्य है। Jesus paid the price for you. यीशु ने आपके लिए कीमत चुकाई And He है wants to establish you और वो आपको स्थापित करना चाहता है in what He has called you. जिसमें उसने आपको बुलाया Not है। what you want to do, और नहीं आप जो करना चाहते but हैं what उसमें नहीं, He wants to do. परंतु जो वो चाहता है उसमें। Enough of what we want to do. और बहुत हुआ जो हम चाहते हैं। It's time we begin doing what He wants us to do. समय है हम वो करें जो वो चाहता है। Jesus surrendered to the will of His heavenly Father. यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता को इच्छा को समर्पित That किया। is why He could say, "Not my will, but Thy will be done." इसीलिए वो कह सके, पिता मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। Not only while He was living, but even as He hung upon the cross. और केवल जब वो जी रहे नहीं थे परंतु क्रूस पर लटकाए जाने के Not समय में my भी, will, मेरी इच्छा नहीं but Your will be done. परंतु आपकी इच्छा पूरी Some हो। of you need to come to that place of surrender this morning. आप में से कुछ को आज की सुबह समर्पित होना है, Because even in your mess, you're trying to find out ways. क्योंकि आपकी गड़बड़ी में भी आप मार्ग को ढूंढ रहे हैं। The only way in a messy situation is surrender. गड़बड़ी की परिस्थिति में केवल एक ही मार्ग है, समर्पित होना। The only solution in a messed up situation is to surrender to the Lord. गड़बड़ी की परिस्थिति में केवल एक ही हल है कि परमेश्वर को आप समर्पित हो जाएं। No justifying. और कोई भी न्याय नहीं, Don't justify. अपने आप को अब न्याय न I दे। did this for this, I'll fix it, I know. The Lord just wants you to know He is about to set you free and He's also about to establish मैं you. ये करूंगा, मैं वो करूंगा। परमेश्वर चाहते हैं आपको छुटकारा देना और आपको स्थापित करना। Joshua was established by the Lord. यहोशू परमेश्वर द्वारा स्थापित किए गए। Amen. आमेन। What did the Lord promise him? परमेश्वर ने उसको क्या वादा दिया? As I was with Moses, I will be with you. जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तेरे संग रहूंगा। And the Lord wants you to know this morning that He is with you. और परमेश्वर चाहते हैं आज की सुबह आप जाने कि वो आपके संग है। And some of you seek it here this morning, you say, Lord, if you're with me, like Gideon, you're saying, Lord, if you're with me, why all this trouble has come? और आप में से कुछ गिदोन के समान कह रहे हैं कि यदि परमेश्वर आप मेरे संग तो ये समस्याएं क्यों That's हैं? what Gideon said. इसी रीति से गिदोन ने कहा, God said, you mighty man of valor. और परमेश्वर ने कहा, हे बहादुरी के पुरुष। Well, if that is true, Yes. and you are with me, then why is all this trouble taken place? और उसने कहा, यदि ये सत्य है कि तू मेरे संग है तो ये समस्याएं क्यों हैं? The trouble took place because of disobedience. समस्याएं उत्पन्न हुई क्योंकि उसने आज्ञा पालन नहीं किया। God would permit the enemy to come and take over to teach a lesson to His people when they disobeyed. और परमेश्वर ने अनुमति दी कि शत्रु आए और उसके लोगों पर प्रहार करे क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन The किया Lord था। does not want His church to disobey. परमेश्वर नहीं चाहते कि कलीसिया आज्ञा उल्लंघन He's करे। raising up a church that is obedient. वो ऐसे कलीसिया को तैयार कर रहा है जो आज्ञाकारिता में A चलती है, church without spot, wrinkle or blemish. और एक कलीसिया जो निष्कलंक निष्पाप है, Amen. A church that is prepared for His bride. और एक For कलीसिया its जो bride. और एक कलीसिया जो तैयार है उसके दुल्हन के लिए, उसके दूल्हे के लिए। And so in whatever situation you are this morning, on this anniversary day, I want to declare that the Lord will establish you in all that He has called you to. कलीसिया आज के सालगिरह के दिन में मैं आपको कहता हूँ, चाहे आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर आज आपको स्थापित कर रहे हैं। Psalms chapter 90 and verse 17 भजन संहिता 90 उसका 17वां आयत says, May the favor of the Lord our God rest on us, और परमेश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे, establish the
work of our hands for us. और हमारे कामों के लिए वो हमें सिद्ध करे। Yes, establish the work of our hands. और हमारे काम, हाथों के कामों को आप दृढ़ करें। Point number 1. पहला मुद्दा, This morning, आज की सुबह ask God आप परमेश्वर से मांगे to give you permanence, आपको स्थायी करे, success, सफलता and significance और महत्व to all that you do. जो कुछ आप करें उसमें। God wants to do permanent things. और परमेश्वर जो है स्थायी चीजों को करने पर God है। doesn't want to do temporary things. परमेश्वर अस्थायी चीजें नहीं करते। Through permanent things, He'll get glory. स्थायी चीजों से उसे महिमा One of मिलती the things है। that was prophesied this morning is that this ministry, this church will always have serving people. और आज की सुबह जो भविष्यवाणी आई कि इस कलीसिया में हमेशा लोगों के सेवक रहेंगे। Amen? That's what we believe. और ये हम भरोसा The करते church हैं। is not just called to sit down, और ये जो कलीसिया जो है बैठने वाली कलीसिया but the नहीं church है। is called to serve. और ये कलीसिया बुलाई गई है सेवकाई करने के We लिए। need to raise up a people who will serve Yeshua, हमें ऐसे लोगों को बढ़ाना है जो यीशुआ की सेवा करे, who is willing to go and pray for people. जिनकी इच्छा होगी जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करने And की। stop, pray for me, pray for me. और रुके कि मेरे लिए प्रार्थना करे, मेरे लिए I'm प्रार्थना ready to pray for somebody. करे। और मैं किसी और के लिए I'm प्रार्थना ready to करूंगा। prophesy in somebody's life. और मैं तैयार हूँ किसी और के जीवन पर भविष्यवाणी करने के And that लिए। becomes our lifestyle. और ये हमारी जीवन शैली बन जाती We है। don't need to wait for Sunday to prophesy. हमें रुकना नहीं है संडे के लिए भविष्यवाणी करने We के लिए। can prophesy every day by the leading of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से हर रोज भविष्यवाणी कर You सकते can हैं। prophesy at your workplace. आप अपने काम के स्थान पर भविष्यवाणी कर You सकते can हैं। prophesy in your business. आपके काम पर आप भविष्यवाणी कर Not सकते just हैं। over your business, but through your business केवल deals. आपके व्यवसाय पर नहीं परंतु व्यवसाय के हर एक डील पर आप Young भविष्यवाणी ones, teenagers, you can prophesy in your high schools. You can prophesy in schools. You can prophesy in your universities. और जवान और बच्चे अपने स्कूल में अपने कॉलेज में भविष्यवाणी कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। You're ready to prophesy? क्या आप तैयार हो भविष्यवाणी You're करने ready? के I लिए? like that. Young people, the Lord is going to use young people these days. परमेश्वर आज के दिनों में जवानों का इस्तेमाल करेंगे And He's going to use them to prophesy. और उनका इस्तेमाल करेंगे भविष्यवाणी करने And के the लिए। prophetic word that will be released by the leading of the Holy Spirit will bear fruit. और पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो भविष्यवाणी के शब्द निकलेंगे उससे फल आएंगे। Ask God to give permanence, और परमेश्वर से मांगे स्थायिता to के give लिए। success and significance to all that you do. हर एक काम में सफलता और महत्व को देने के लिए। Amen? Amen. Because human effort alone is temporary. क्योंकि मानवीय परिश्रम जो है वो अस्थायी होती है, Yeah, it is temporary. वो अस्थायी होती है। Yes, but what God does, परंतु जो परमेश्वर करते हैं, when God blesses that work, परमेश्वर उन कामों को आशीष it देते has a हैं lasting impact. और वो हमेशा के लिए बना रहता God है। wants to use you, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना each चाहते one हैं, of you this morning, हर एक जन आप में से to do His work उसके काम को करने के that will लिए last. जो बना रहेगा। Jesus talked about bearing fruit. और यीशु ने फल को पाने की ऐसी बात First, की। He talked about bearing fruit. और पहले उन्होंने कहा कि फल को पाओ, Then, second in connection, He said fruit that will last. और दूसरे उसके संबंध में कहा कि जो फल सदा बना You रहेगा। know, fruit that will last और फल जो सदा बना रहता है has the power to reproduce. उसमें सामर्थ होती है उत्पन्न करने की। God is calling His church to reproduce. परमेश्वर अपनी कलीसिया को बुला रहा है उत्पन्न करने के God लिए। doesn't want you to sit here forever. और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप हमेशा यहाँ बैठे रहे You know, come out of that mentality and we lived happily ever after. और इस सोच से आप बाहर निकले कि हमेशा हम God खुश wants you to रहें। get up. परमेश्वर चाहता है आप उठे, He wants you to go out. वो चाहते हैं आप बाहर जाए। Some place He'll make you start might not have AC. और कुछ स्थानों में वो आपको देगा वहाँ पर No AC नहीं chandelier होगा like this. और कोई ऐसा चमकदार चीज़ No नहीं होगी। lift to climb up. कोई लिफ्ट नहीं होगा जाने के He'll लिए want you to start there. और वो चाहता है कि आप वहाँ पर Because शुरुआत that's करें the way God works. क्योंकि इसी रीति से परमेश्वर कार्य His word करते हैं। says, don't despise the days of humble beginnings. और उसका कहता है कि विनम्र शुरुआत को आप कुछ ना जाने। The first church we planted पहली कलीसिया जिसको हमने स्थापित किया was 32 years ago 32 वर्ष पहले in Uran. उरन में। Do you know how Uran looked 32 years ago? क्या आप जानते हैं 32 साल पहले उरन कैसा दिखता था? She used to stand with one child in the hand, और वो एक बेटे को लिए हाथ में खड़ी रहती थी। and we had no mobiles, हमारे पास मोबाइल नहीं थे, no announcement कोई अनाउंसमेंट नहीं होता that था the ST bus is cancelled. और एसटी का जो बस कैंसिल हुआ The है, next bus is after 1.5 hours. अगला बस जो है 1.5 घंटे By the बाद way, है। we were waiting for 1 hour. और हम लोग 1 घंटे से रुके ही हुए So you हैं। get a bus after 2.5 hours तो आपको जो बस है 2.5 घंटे बाद मिलती to है reach to some place where hardly people live. और कुछ ऐसे स्थान में जाने के जहाँ पर कुछ ही लोग रहते We हैं। are so close to our parents, हम अपने माता पिता के इतने नजदीक रहते हैं, but still we are far away from them. फिर भी हम उनसे इतने दूर हैं। And you know, I used to ride a motorcycle. मैं एक मोटरसाइकिल चलाता था
And you know, sometimes because of the bumpy road, और वो खड्डे जो रास्ते भरे थे, there would be some loose contact in the headlight. और हेडलाइट में जो ऐसा लूज कनेक्शन होता था, Suddenly the light would conk off. तो अचानक लाइट बंद हो जाती थी। I'm talking about from Chembur to Uran. After Navi Mumbai, there is no light further. और चेंबूर से उड़न में नवी मुंबई के बाद वहाँ पर लाइट ही नहीं होती थी। You know how I used to ride the bike? आप जानते हैं मैं कैसे गाड़ी चलाता था? I used to follow a truck. मैं एक ट्रक का पीछा करता था, I used to follow the tail light of the truck. और ट्रक की जो छोटी लाइट है उसका पीछा मैं करता Today the था। church is established there. आज कलीसिया जो वहाँ पर स्थापित किए, God said, I will establish it. परंतु परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे स्थापित करूंगा। 32 years have gone. 32 वर्ष बीत गए, We are not there. हम वहाँ पर नहीं हैं। The pastor is there. पासबान वहाँ पर है, The church is there. कलीसिया वहाँ पर है, Because when God establishes it, क्योंकि जब परमेश्वर स्थापित करते हैं, nobody can touch it. कोई भी उसे छू नहीं No सकता, demon can touch it. कोई शत्रु उसे छू नहीं To सकता। God be the glory. और परमेश्वर को महिमा To मिले, God be the glory. परमेश्वर को महिमा मिले। He used us उसने हमारा इस्तेमाल किया at that time. उस समय में, He wants to use you too. वो आपको भी इस्तेमाल करना चाहता He है। wants to take you to places you have never imagined. और जिस स्थान में आप नहीं गए उस स्थान में आपको ले जाएगा, Because whatever God calls you to, He is willing to establish it. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर आपको बुलाते हैं उसमें वो इच्छा है स्थापित करने की। What is the problem? समस्या क्या है? People's focus is prosperity. और लोग का जो ध्यान है वो समृद्धि की ओर। I am not against prosperity. मैं समृद्धि के विपरीत नहीं, Nothing comes free. कुछ भी आसान से You मुफ्त have नहीं to pay आता, for it. आपको कीमत देनी But पड़ती है। the point is, prosperity is not the focus. परंतु मुद्दा ये है कि समृद्धि की ओर ध्यान ना रहे। Prosperity is the byproduct of walking in obedience to all that God has called us. और जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसमें आगे तक कार्य करने से समृद्धि मिलती God है। wants to make you prosperous. परमेश्वर आपको समृद्ध करना चाहते It हैं। is God's will that you become millionaires, billionaires, ये and परमेश्वर की trillionaires. इच्छा है कि आप बहुत रईस हो, But you also need to know why God should bless you. परंतु ये आपको जानना है कि परमेश्वर आपको क्यों That आशीष God, I want your kingdom to advance through my कि life. वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। At this crossover service, और ये क्रॉसओवर सर्विस पर 31st night, first morning, 31 के रात को पहली I सुबह had में few people after church service come and meet me. कलीसिया के कुछ लोग मेरे पास आए और मिले, And one man told me, और एक मनुष्य ने मुझसे कहा, I want to help to plant 4 churches this year. और मैं चाहता हूं कि इस वर्ष में 4 कलीसिया को स्थापित करने में मदद करूं। You know what is the best part? और उत्तम भाग ये है, He didn't ask me how much money you need. उसने मुझे नहीं पूछा कि कितना पैसा आपको चाहिए। He said, 4 churches I want to be instrumental in planting. उसने कहा कि 4 कलीसिया को स्थापित करने में मैं इस्तेमाल I करना just took my चाहता हूं। hand out. और मैंने अपना हाथ लिया, I shook hands with him. उसके हाथ मिलाया, I said, it's a done deal. और मैंने कहा कि हाँ पूरा करेंगे। You have a desire to advance the kingdom. यदि आपकी इच्छा है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की, Every church plant will see people come to the Lord. हर एक कलीसिया स्थापित करने देखेंगे परमेश्वर के लोग उसमें आएंगे। Every church plant will be a place or an avenue where the gifts of the Holy Spirit is used. हर कलीसिया की स्थापना में देखेंगे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल जो है इस्तेमाल किए जाते We हैं। want our young people worshiping in the church, playing in the church, not playing in the pub. हम चाहते हैं हमारे जवान लोग जो है कलीसिया में खेलें, कलीसिया में स्तुति करें, ना कि पब में करें। That music is tempting. और वो जो संगीत है वो मोह देने वाला है। That music is tempting. हाँ, वो जो संगीत है वो मोह देने वाला है। This music is liberating. और ये संगीत जो है वो छुड़ाने वाला है। That music has an end. और उस संगीत का अंत है। This is that music, सांसारिक, हाँ। जो शैतान का है, उसको अंत है. It has an end. और सांसारिक संगीत को जो है अंत है। This worship is endless. परमेश्वर की संगीत जो है वो उसका अंत नहीं है। Listen, please worship here, okay? सुने, यहीं पर आराधना करें। It won't suddenly happen in heaven. और अचानक से स्वर्ग में ना होगा, You have to practice here. यहाँ पर आपको प्रशिक्षण करना है। The 4 and 20 elders bow down and worship. और जो प्राचीन है वो झुककर परमेश्वर की आराधना करते हैं। We also need to. हमें भी करना है। We are not greater than them. हम उनसे महान नहीं हैं। Doesn't matter about your kapda. और चाहे आपके कपड़े कैसे भी हो, Laundry is available. लॉन्ड्री मौजूद Dry है, cleaning is available. ड्राई क्लीन मौजूद है। But when you worship the Lord, परंतु जब आप परमेश्वर की आराधना करते you are हैं, not ashamed of Him. आप उसकी शर्मिंदगी नहीं God पालते। will establish you. परमेश्वर आपको स्थापित करेंगे। When others are shaking, जब लोग हिलते हैं, when others don't know what's happening, जब
जब लोग नहीं जानते कि क्या करना है, God will preserve you. परमेश्वर आपको बचाए You know, रखेंगे। many times people are so afraid when there is a downsizing in the organization. और कई बार लोग जो है डर में आ जाते हैं जब उनके कामकाज पर जो है वो ऐसे घटी होती Oh, है, in that redundancy list is my name there. और उस काम के निकाले जाने की लिस्ट में मेरा नाम है। Oh, my colleague told me तेरा भी नाम होगा. मेरे साथी ने कहा कि शायद तेरा भी नाम होगा। But if you say, God, you have established me. परंतु यदि आप कहें कि परमेश्वर आपने मुझे स्थापित किया No one है, can shake me from here till you want me to leave. जब तक आप ना चाहे कोई मुझे यहाँ से हिला नहीं सकता। Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you, God will establish you. परमेश्वर आपको स्थापित करेंगे। The Lord told me to resign a government job and go from here. और प्रभु ने मुझसे कहा कि एक गवर्नमेंट जॉब को मैं रिजाइन करूँ, यहाँ से चला जाऊँ। You know, the job that I was working was pensionable. और जिसमें मैं काम कर रहा था उसमें पेंशन मिलने वाली I'm थी। running my 61, that means pension should have been on. और मैं अभी अपने 61वें उम्र में हूँ, तो इसका मतलब पेंशन The Lord शुरू said, होना leave it चाहिए। all and go. परमेश्वर ने कहा सब छोड़ कर जा। I went and I took up a job in Dubai. और मैं जाकर मैं दुबई में काम करने लगा, And I got cheated in my first job. और पहले काम में मुझे धोखा मिला। The salary that they told me, they gave me half the salary. और जो पगार उन्होंने मुझसे कहा था उसका आधा पगार उन्होंने मुझे The दिया। Lord said, I will establish you. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे स्थापित करूंगा। What a way to be established. और क्या तरीका है स्थापित होने का। God, I had a house. और मेरे पास घर है, I still have it. और मेरे पास अभी भी घर है। People come here to the Gulf to make money to build a house. और लोग गल्फ में आते हैं पैसा बनाकर घर I बनाने have के a लिए। house. मेरे पास घर है, I have a car. मेरे पास गाड़ी I है, have a two-wheeler. मेरे पास टू व्हीलर I है, have one wife. मेरे पास एक पत्नी है, I have two children. मेरे पास 2 बच्चे I got a हैं, ministry. मेरे पास सेवकाई है। Why you brought me here? तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया God है? said, obey me. परमेश्वर कहा मेरे आज्ञा पालन कर। The Lord made me work only in one job for 11 years. और परमेश्वर ने केवल मुझे एक ही काम में कार्य करने दिया 11 वर्षों The के लिए। same job, same employer who cheated me. और उसी मनुष्य ने जिसने मुझे धोखा दिया था, They told me one day that they do not want me. और उन्होंने एक दिन कहा कि वो मैं नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर काम करूं। I went home. मैं घर गया, I said, God, मैंने कहा प्रभु that man didn't give me the job. उस आदमी ने मुझे काम नहीं दिया। He is the owner, CEO, I don't care. वो मालिक होगा, सीईओ होगा, मुझे चिंता नहीं। I respect him for his position. मैं उसके ओहदे के लिए उसका सम्मान करता हूँ, But I fear you. परंतु मैं तुझसे डरता हूँ। I don't fear him. मैं उससे नहीं डरता, He can't do anything वो to कुछ me. नहीं कर सकता। Give me a word. Give me a word. एक वचन आप मुझे दे। The Lord gave me Psalm 71:21. और भजन संहिता 71:21 परमेश्वर ने मुझे दिया। And you know what does that word say? और वचन क्या कहता है? I will honor you मैं तेरा सम्मान and करूंगा I will comfort you once again. और मैं तुझे फिर से सराहूंगा, सम्मान दूंगा। I don't know if you have such an experience in your life, but let me tell it to you. और मैं नहीं जानता कि आपने ऐसा अनुभव किया है, परंतु मैं आपसे कहता हूँ, Every week I would go to my managing director's cabin. और हर हफ्ता मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के कैबिन में जाता था, I would knock at his door. उसके दरवाजे पे खटखटाता था, He would say, "Come in." वो कहता था अंदर आ जाओ। I would ask him, "When do you want me to go?" और मैं तो कहता था कि तुम क्या चाहते हो कि मैं कब जाऊँ? You said you don't want me. आपने कहा कि आप मुझे नहीं चाहते। बोलो. आप बोलो। He said, "Now you go." उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ। Next week I went. अगले हफ्ते में तुम्हें दूंगा। Next week I went. अगले हफ्ते में गया, 4th week I went. चौथे हफ्ते में गया, Same answer. वही उत्तर। 5th time I went. 5वीं बार में गया, He said, "You don't go. उन्होंने कहा कि तुम मत जाओ, You stay here." तुम यहीं रह जाओ। I said, "Then that's a deal." और फिर मैंने कहा कि ये डील है। Now I was alone here. I'm going to bring my family. अब मैं यहाँ पर अकेले साथ में अपने I'm परिवार को going to लेकर आऊंगा। sponsor them. I'm going to do everything that is required. और मैं जो कुछ करना चाहता हूँ मैं करूंगा। He said, "Go ahead." उसने कहा कि आगे बढ़ो। After 1 year, 1 वर्ष के बाद now he calls me in the cabin. अब वो मुझे केबिन में बुलाता है। First time also he had called me पहली बार उसने मुझे बुलाया to था, tell me I'm going to finish उसे it. कहने के लिए कि तुम्हें जाना है। After 1 year he calls me again. 1 वर्ष बाद वो मुझे दोबारा On बुलाता the है, intercom you can see managing director name, his number and name comes. और इंटरकॉम पे हम देखते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम और नंबर I आ रहा said, है। "Lord, क्या है?" और मैंने कहा प्रभु क्या है? I went, knocked, went. और मैं जाकर के दरवाजे को He said, "I खटखटाया। want to tell you one thing. उसने कहा कि मैं एक चीज तुझसे कहना चाहता हूँ You are a man of God." कि तू परमेश्वर का मनुष्य है। You know, when God establishes you, जब परमेश्वर आपको स्थापित करते हैं, nobody can touch you. कोई आपको स्पर्श नहीं कर सकता। After 7 years, 7 वर्ष के बाद that company got sold कंपनी जो है बिक गई to an Australian multinational. और एक ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल को। God gave me 4 times my salary, 4 times. परमेश्वर ने मुझे 4 गुना पगार दिया।
And after 13 years, 13 वर्ष after 11 years, 11 वर्ष के बाद I was due for a high promotion. और मुझे है बढ़ोतरी मिलने वाली थी। I was excited. मैं बहुत उत्साही था And now I'll get a super salary. और मैंने कहा कि अब मुझे अच्छा पगार मिलेगा। My colleagues were telling me you are entitled for $10,000 और मेरे साथी ने कहा कि अभी तुझे $10,000 in मिलेंगे 2013. 2013 में $10,000 a month, और $10,000 एक महीने का tax free. टैक्स फ्री। You know what the Lord told me? प्रभु ने मुझसे क्या कहा? छोड़ दे. छोड़ दो। You know, God tests us. परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं And the way He establishes us, if you surrender, और जिस रीति से वो हमें स्थापित करते हैं यदि आप He will समर्पित do a करें, mind-blowing thing. और वो बहुत ऐसी भयंकर चीजों को कर रहे We did हैं। not have support हमारे पास कोई सहारा from नहीं था people, लोगों के द्वारा, but we had support from God. परंतु परमेश्वर के द्वारा You हमारा may सहारा say मिला। this morning, I don't have support from people. आज की सुबह आप कहेंगे कि लोगों का सहारा मुझे नहीं But है, I want to tell you that you have support from God. परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि आपको The परमेश्वर का सहारा question है। this morning is, who are you taking support from? और आज की सुबह प्रश्न है कि आप किसका सहारा ले रहे हैं? David said, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. और दाऊद ने कहा कि मेरी सहायता परमेश्वर से आती है जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। The focus is not prosperity. ध्यान समृद्धि की ओर नहीं, The focus should not be prosperity. ध्यान समृद्धि की ओर ना हो, It should be purpose. परंतु वो उद्देश्य की ओर हो, It should be alignment to God's will. वो परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाने वाला And हो, it should be fruit that will last. और वो ऐसा फल हो जो बना रहे। The Lord wants to bring a change in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लाने चाहते The Lord हैं। wants to give you a breakthrough. परमेश्वर आपको बेदारी You देना know, चाहते हैं। every breakthrough that God brings in our life हर एक बेदारी जो परमेश्वर हमारे जीवन में लाते हैं comes by drawing ourselves to Him. आती है हम जब उसके निकट जाते हैं। God doesn't want you to become a millionaire or a billionaire without seeking Him and knowing Him. और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप एक मिलियनियर या बिलियनियर बने उसे खोजे बिना, Because the devil is more than ready to mess your life up with that billions and billions and put you into big trouble. क्योंकि शत्रु तैयार है उन पैसों से आपके जीवन को गड़बड़ी में डालने के लिए, आपको समस्या में डालने के This लिए। morning the Lord wants you to be established. आज की सुबह परमेश्वर चाहते हैं आपको स्थापित करना। Number one, are you ready to surrender? पहली चीज कि आप तैयार है समर्पित Are होने you के ready लिए, to surrender? कि आप तैयार है समर्पित होने के लिए, Whatever was that situation in your life. चाहे आपके जीवन की कोई परिस्थिति हो। God is bringing healing even in marital relationships this morning. और आज की सुबह परमेश्वर वैवाहिक संबंधों में चंगाई को ला रहे हैं। God is drawing the heart of the children to their parents and parents to their children this morning. और परमेश्वर आज के सुबह माता पिता का हृदय और बच्चे का हृदय एक दूसरे से मेल करा रहे This हैं। morning the Lord is healing some children who are hurt because of their parents. और आज के सुबह कुछ बच्चे जिसका हृदय टूटा है अपने माता पिता को, जिसे परमेश्वर उन्हें चंगाई दे रहे हैं। He is bringing healing to your soul, वो आपकी आत्मा को चंगाई दे रहे to your हैं। mind, to your will, to your emotions. He is bringing healing. आपके मन, आपकी इच्छा, आपके हृदय, आपके भावनाओं को And He चंगाई is दे रहे हैं। restoring the family. और वो परिवार को स्थापित कर रहे हैं। You know, this year the Lord told us to focus on families. और इस वर्ष परमेश्वर ने हमसे कहा है कि परिवारों पर ध्यान That लगाएं। doesn't mean singles are of no value. और इसका अर्थ ये नहीं कि जो अकेले हैं उनकी कोई कीमत नहीं। It is the Lord who enables singles to settle down in families. और ये परमेश्वर ही है जो अकेले लोगों को परिवार देते हैं। And this morning, और आज की is सुबह bringing healing in your life. वो आपके जीवन में चंगाई ला रहे Healing हैं। in your life. आपके जीवन में चंगाई ला रहे हैं। Some of you are feeling shameful आप में से कुछ लोग जो है शर्म को महसूस कर रहे because हैं of some strain in relationships or broken relationships. क्योंकि कुछ टूटे संबंधों के कारण। Some young men and women here, कोई जवान पुरुष और स्त्री because of your relationships or attraction, और आपके संबंधों के और वजह से there have been heartbreaks, जहाँ पर टूटे मन हैं and you are living in the past. और आप भूतकाल में जी रहे This हैं। morning, the Holy Spirit is setting you free. आज की सुबह पवित्र आत्मा आपको आजाद He कर is रहा setting है। you free. वो आपको आजाद कर रहा He है। is drawing you to your first love, वो आपको अपने पहले प्रेम की ओर खींच रहा not है। that boyfriend or girlfriend, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पास but नहीं, to your first love. परंतु आपके पहले प्रेम की ओर। Because one day you had said, Lord, I love you. क्योंकि एक दिन आपने कहा था कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता But the हूँ, enemy also drew you to something else. परंतु शत्रु ने किसी और चीज की जगह आपको But ले this गया। morning the Lord is setting you free. आज की सुबह प्रभु आपको आजाद You करते will हैं। not hide under the tree of shame, आप शर्म के पेड़ के नीचे छिपेंगे but नहीं, you will live in the freedom that the Lord has given. परंतु जो आजादी परमेश्वर ने दी है आप उसमें The जिएंगे। Lord is giving you the grace to forgive. परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है क्षमा करने की। There is some people who needs to forgive, especially in your marital relationships. यहाँ पर कुछ लोग हैं खास तौर से अपने वैवाहिक संबंधों में आपको God क्षमा is करना giving है। you the grace to forgive. परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहे हैं क्षमा You करने know की। how? आप कैसे?
He is showing you how much He forgave you. और वो आपको दिखा रहा है कि कितना उसने आपको क्षमा किया Till है। you do not know how much you are forgiven, क्या? you cannot forgive. यदि आप नहीं जानते कि कितना आपको क्षमा मिली है तो आप भी दूसरों को क्षमा नहीं कर He पाओगे। has forgiven each one of us a great debt. और बहुत महान रीति से उसने हमें से हर एक को क्षमा दिया है। And we forgiving someone else in need is nothing in comparison to what He has done for us. और जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो उसके क्षमा के रूप में तुल्य में वो कुछ भी नहीं। Are you ready to forgive? क्या आप तैयार है क्षमा करने के Are you लिए? ready to forgive? क्या आप तैयार है क्षमा करने के लिए? Unconditional forgiveness और बेइंतहा आप will क्षमा be the करें। doorway वो आपके लिए मार्ग to बनाएगा see a new season in your life. आपके जीवन में नए मौसम के लिए। A season where you will not struggle. और ऐसा मौसम जिसमें आप A संघर्ष नहीं season where करेंगे। you will see God send His angels to go ahead of you and make the way for you. और ऐसा मौसम आप देखेंगे जिसमें परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा आपके आगे चलने के लिए। God gives success to the work of our hands. परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को सफल करते हैं। When? कब? Proverbs 16:3. नीति वचन 16:3 It says, "Commit your works to the Lord, और कहता है अपने कामों को परमेश्वर पर and डाल your दे thoughts will be और established." तुम्हारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। You know those thoughts. There are some thoughts that are wavery. They keep waving. और जो कुछ कल्पनाएं हैं वो डगमगाती रहती है। The book of James calls such people double-minded. याकूब की किताब ऐसे लोगों को दुगले मन के कहते I'll हैं। do this. मैं ये करूंगा। No, I won't do this. नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। I'll start now. मैं अब शुरुआत करता हूँ। No, next month is okay. नहीं, अगले महीने ठीक है। It's possible? क्या ये संभव है? No, it is possible. हाँ, ये संभव है। Now it looks impossible. परंतु अभी असंभव लगता है। They are confused. वो इतने गड़बड़ी में रहते God हैं। doesn't want anyone to live confused lives. परमेश्वर नहीं चाहते कोई गड़बड़ी का जीवन God जिए। wants us to have clarity. परमेश्वर चाहते हैं हमारे पास स्पष्टता हो। Proverbs 16:3 says, नीति वचन 16:3 में "Commit कहा your है, works to the Lord, अपने कामों को यहोवा पर and डाल your thoughts will be established." और तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। I speak to you this morning. आज की सुबह मैं तुमसे कहता हूँ Let this mind within you be the mind of Christ Jesus. और आपका जो मन है मसीह का मन रहे Sin has no dominion over you. और पाप का आप पर कोई You राज्य have been नहीं। set free, translated from darkness into light. आप आजाद किए गए, अंधकार से प्रकाश मिलाए गए For हैं। those who are in Christ, they are a new creation. जो कोई मसीह में है वो नई रचना The है। old has gone, behold, all things are new. पुरानी बातें बीत गई, नई बातें हो God गई wants हैं। to establish you. परमेश्वर आपको स्थापित करना God चाहते doesn't हैं। want you to quit. परमेश्वर नहीं चाहते आप हार God माने। wants you to press in. परमेश्वर चाहते आप बने God रहे। wants you to press on. परमेश्वर चाहते आप बढ़ते रहे। Because He who has called you is faithful. क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य He is है। healing your mind. वो आपके मन को चंगाई He's दे रहे healing हैं। your heart. वो आपके हृदय को चंगाई दे He रहे is हैं। healing the relationships that He has put you into. और जिस संबंधों में उसने डाला है उसमें चंगाई At the दे रहे same हैं। time, the power of His Spirit is pulling out people from your life who have become barriers. और उसी समय से उसके आत्मा जो है जिन लोगों ने आप में जो है बंजरपन को लाया है उसे वो निकाल रहे हैं। When everything that you do is surrendered और to God, जो कुछ आप करते हैं यदि आप परमेश्वर को समर्पित करें, stability and direction will follow. स्थिरता और निर्देशता वहां पर आती है। I want you this morning मैं चाहता हूँ आज की सुबह to surrender everything to the Lord. हर एक चीज आप परमेश्वर को Say समर्पित after करें। me, Lord, मेरे पीछे कहे प्रभु I surrender मैं समर्पित करता हूँ my life, मेरा जीवन, my family, मेरा परिवार, my marriage, मेरी शादी, my walk with you, मेरी आपके साथ my चलन, finances, मेरी आर्थिक चीजें and your call और आपकी बुलाहट that you have laid जो आपने मुझ पर रखी on my है life. मेरे जीवन पर, I surrender afresh to you. और पूरे रीति से मैं आपको And I समर्पित करता come to हूँ। this place और इस स्थान में मैं आता of हूँ rededicating my life अपने जीवन को पुनः स्थापित for करते the हुए glory of your name. आपके नाम की महिमा के लिए। I shall be मैं रहूंगा, not swayed डगमगता हूँ नहीं with thoughts that come from the enemy, जो शत्रु के पास से विचार आते हैं उसमें, but I will allow you. परंतु मैं आपको अनुमति I will दूंगा, allow your word मैं आपके वचन को अनुमति दूंगा to establish my thoughts मेरे विचारों को स्थापित करने के so that लिए, in everything I do, ताकि जो कुछ मैं करूँ I shall stand firm. मैं बिना डरे हुए खड़ा रहूं। As I close this morning, जैसे आज की सुबह मैं समाप्त करता हूँ, let me tell you मैं आपसे कहता हूँ that God makes the work enduring or lasting. और परमेश्वर जो है कामों को सदा बनाए रखते हैं। Whatever He has caused you to start, और जो कुछ उसने कहा है आपको शुरुआत करने के लिए He will keep it going on. वो उसे बनाए रखेंगे। You know something, let me tell you something. और आज की सुबह आपको On कुछ this कहता हूँ, anniversary day, आज की सालगिरह के even दिन if पर, I'm not alive, this ministry will go on. और यदि मैं जीवित ना रहूं तो भी ये सेवकाई बढ़ती रहेगी, It will go on. ये चलती रहेगी। I'm not celebrating the ministry. मैं सेवकाई को नहीं मना रहा, I'm celebrating Jesus. मैं यीशु को मना रहा हूँ। He's greater than the ministry. वो सेवकाई से बढ़कर This is है, His ministry. ये उसकी सेवकाई And है He has many works around.
around. और उसके बहुत से काम ऐसे जो आजू बाजू में When है, we are faithful in the little, परंतु यदि हम थोड़े में विश्वास God करेंगे, gives more. परमेश्वर हमें और देंगे। We started with just one church. हमने एक कलीसिया से शुरुआत की। We went into a land where we didn't know people. हम ऐसे भूमि पर गए जहाँ पर हम लोगों को नहीं But जानते God थे, established us there. परंतु परमेश्वर ने यहाँ पे वहाँ पर स्थापित From किया। there we could reach out to the nations and plant 42 plus churches in the nations. और वहाँ से हम अलग अलग राष्ट्र में गए, हमने 42 कलीसिया को स्थापित किया। Every quarter we are planting churches in the nations of the और हर world. एक महीने हम राष्ट्रों में कलीसिया को स्थापित कर रहे We are हैं। again traveling in March to Philippines to plant another church. और मार्च में हम फिलीपींस जा रहे हैं दूसरी कलीसिया को स्थापित God करने is के लिए। opening further doors in Nepal. और परमेश्वर नेपाल में दरवाजों को खोल रहे God has हैं। opened doors in Qatar. परमेश्वर कतार में God has दरवाजों को खोल opened रहे doors हैं। in Oman. परमेश्वर ओमान में God दरवाजों has को खोल रहे opened हैं। doors in Kenya. वो केनिया में दरवाजों को खोल And रहे to the हैं। nations of the world. और इस संसार के सारे I राष्ट्रों pray that में the Lord takes you to the nations of the मैं world. प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको राष्ट्रों में ले जाए, But for that you need to do something. परंतु उसके लिए आपको कुछ करना To है, be His witness. उसके गवाह बनना है। First in Jerusalem. पहले यरूशलेम में, There is no Samaria without Jerusalem. कोई समारिया नहीं यरूशलेम There के is no बिना, ends of the earth without Jerusalem. कोई पृथ्वी का छोर नहीं यरूशलेम के बिना। Jerusalem, यरूशलेम, Judea, जूडिया, Samaria, समारिया and to the ends of the earth. और पृथ्वी के छोर तक। God did not take us and shift us from here when we were doing nothing. परमेश्वर ने हमें यहाँ से लेकर किसी और साल में नहीं रखा जब हम कुछ नहीं कर रहे God थे। took us when we were very successful. परमेश्वर हम तब लेकर गए जब हम बहुत सफल थे। God did not tell Abraham to sacrifice Isaac when he didn't have a son. परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं कहा इसहाक को देने के लिए जब उसके पास पुत्र नहीं था तब, He said when he had the son, और जब उसके पास पुत्र था तब देने के लिए God कहा। will test you. परमेश्वर आपकी परीक्षा लेंगे। Whether you like your comfort zone क्या आपको आपके आराम साई पसंद or say, है? Lord, wherever you send me, I will go. और मैं कहूँ प्रभु जहाँ कहीं आप भेजो भेजिए Because मैं you जाऊंगा, left the glories of heaven and you came क्योंकि down. आपने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर आप नीचे आए। God makes effort enduring. और परमेश्वर जो है परिश्रम को बनाए रखते As I हैं। close this morning, जैसे आज की सुबह समाप्त करता I हूँ, want you to know, मैं चाहता हूँ आप जाने, especially people who, if you are here and you've been serving the Lord. और खास तरह से जो लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। 1 Corinthians 15:58 reminds us, पहला कोरिन्थियों उसका 15वें अध्याय and let में, it remind you this morning, और आज की सुबह ये आपको स्मरण दिलाए that your labor in the Lord will never be in vain. कि परमेश्वर में किया गया परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं। I'll give an example to it. I'll give an मैं example. उदाहरण दूंगा आपको। I traveled 104 times straight every week from Dubai to Doha, Qatar. और 104 बार मैंने दुबई से दोहा जो है मैंने ट्रैवल किया। The airline knew me, the cabin crew knew me, same time going, same flight coming. और एयरलाइन और उसके वहाँ के सभी कर्मचारी जो है मुझे लोग जानते थे, उसी समय पर जाना उसी समय पर आना। We spent a lot of money traveling and establishing a church in Doha in Qatar. और दोहा कतार में हमने बहुत से पैसे खर्च किए कलीसिया को स्थापित करने के I लिए। used to come back to Dubai, jump into the taxi, go home, take a shower, wear a blazer or a suit and go for the Dubai service. और मैं दुबई में आता था, टैक्सी में जाता था, घर जाकर नहा धोकर कपड़े पहनकर दुबई की सर्विस के लिए तैयार हो It जाता was था। hard work. और ये बहुत कठिन परिश्रम था। And after a few years, और कुछ वर्षों के बाद the diplomatic relationship between both the countries broke. और जो दोनों देशों के बीच के संबंध जो है वो टूट गए। They asked me from there उन्होंने वहां से मुझे पूछा what to do to this church. अब इस कलीसिया का क्या करें? We have another pastor. Can we call? हमारे पास दूसरा पासवान है, क्या हम उन्हें बुला सकते I हैं? said, I leave it to you. अब मैंने कहा कि मैं तुम पर छोड़ता हूँ, I have done my part. मैंने मेरा काम किया है। So they called another pastor तो उन्होंने दूसरे पासवान को बुलाया, and they gave him the church. उन्होंने उस कलीसिया को उसे दे He did दिया all the groundwork. और उसने पूरा जो भूमि का I काम mean, हमने it was किया। a ready church that pastor वो was तैयार ready. कलीसिया Ready पासवान को worship मिली। team, ready instruments, ready, everything ready. सब कुछ तैयार किया हुआ उस पासवान को मिल गया। I just blessed them. मैंने उन्हें आशीष दी। You know, I'll tell you something. I knew that my labor in the Lord will not be in vain. मैं जानता था कि परमेश्वर में मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। For who have I done it? मैंने किसके लिए किया? For the kingdom. राज्य के लिए, For Yeshua. यीशुआ के लिए। Okay? हाँ, After a few years, कुछ वर्षों बाद they had some issues. उनके पास कुछ समस्याएं आई। Pastor went पासवान चले गए and both the country relationship got restored. और दोनों देशों के संबंध जो है वो स्थापित हो You know गए। what they said after 7 years? और 7 वर्षों बाद उन्होंने क्या किया? Please come and take your church. आज जाए अपनी कलीसिया को ले ले। Today our church is running there. आज हमारी कलीसिया वहां पर चलती है। What I'm trying to tell you, मैं आपसे क्या कहना चाहता what you हूँ, have done for the Lord, जो कुछ आपने प्रभु के लिए किया it है will never go waste. वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। Even
even if the Lord did not give that church, I would still be grateful to the Lord. यदि परमेश्वर को कलीसिया नहीं देते तो भी मैं परमेश्वर का धन्यवादित ही रहता। If you are served the Lord somewhere, यदि आपने कहीं तो प्रभु की सेवा की you है said, Lord, I've been forgotten. और आप कहते हैं कि प्रभु मैं भूला जा People चुका हूँ, mistreated me. लोगों ने मुझसे दुष्परिणाम They किया, misunderstood me. उन्होंने मुझे गलत समझा, They judged me. उन्होंने मेरा न्याय किया। Today forgive them आज उन्हें क्षमा करे and rise up again to serve the Lord. और उठ खड़े होकर परमेश्वर की सेवा करे। People may have finished with you, और लोगों ने आपसे समाप्त कर चुके होंगे, but God is not finished with you. परंतु परमेश्वर का कार्य पूरा People नहीं हुआ। didn't call you, God called you. लोगों ने आपको नहीं बुलाया, प्रभु ने आपको बुलाया All है। may not be faithful, but God is faithful. सब विश्वासियों के नहीं होंगे परंतु परमेश्वर So this विश्वासियों morning I के। want to encourage you तो आज की सुबह आपको प्रोत्साहन देता हूँ and remind you और आपको याद दिलाता that हूँ in God, कि प्रभु में not a single work is wasted. और कोई भी काम जो है व्यर्थ नहीं होता, Even when the results are not seen. जब परिणाम नहीं दिखता। As I close this morning, जैसे आज की सुबह समाप्त करता Psalm हूँ, 127:1 reminds us, भजन संहिता 127 पहला कहता है, unless the Lord builds the house. जब तक यहोवा घर ना बनाए। No, it's not about this hall. और ये इस हॉल के बारे में नहीं, It's about this house. ये हमारे शारीरिक घर के बारे में है। Unless the Lord builds this house, जब तक यहोवा ये घर ना बनाए, whatever we do is useless. जो कुछ हम करें वो व्यर्थ है। But the Lord does not want us to do useless things. परंतु परमेश्वर नहीं चाहते कि हम व्यर्थ चीजों को करें, He wants us to do useful things. वो चाहते हैं हमें अच्छी चीजों को करें। This morning, आज की सुबह my prayer for you, मेरी आपके लिए प्रार्थना wherever है, you are, जहाँ कहीं आप हो doesn't matter what your age is, और आप मायने रहता आपकी क्या उम्र the है, Lord wants you to be used as His mouthpiece. प्रभु चाहते हैं कि आप उसकी मुख की वाणी बने, He wants you to be His hands. वो चाहते हैं आप उसका हाथ बने, He wants you to be His feet. वो चाहते हैं कि आप उसके कदम बने, He wants you to be His eyes. वो चाहते हैं आप उसकी आंखें बने, He wants you to be His ears. वो चाहते हैं आप उसके कान बने, He wants you to have His heart. वो चाहते हैं आपके पास उसका हृदय हो। People who are lost, जो लोग घूम गए people who हैं, are messed up, जो लोग गड़बड़ी में people who हैं, are hopeless, जो लोग आशाहीन people who हैं, are sick, जो लोग बीमार that हैं, you would reach to them with the love of Jesus. कि आप उनके पास यीशु के प्रेम को लिए As पहुंचे। you serve Him, God will establish whatever you do. और जैसे आप उसकी सेवा करेंगे, परमेश्वर आपके कामों को Your स्थापित करेंगे, children will be established in the आपके बच्चे land. स्थापित होंगे। You know, let me share with you what is deep inside my heart right now. और इसी क्षण मेरे हृदय की गहराई में क्या है मैं आपसे बांटता हूँ। I'm telling you a truth, a secret of my heart. मैं आपको मेरे हृदय का रहस्य बताता हूँ। As much as I want to be here right now, I want to be in Dubai. और जितना मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ उतना ही मैं दुबई में भी रहना चाहता हूँ। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Today my first son क्योंकि आज मेरा पहला बेटा is a pastor वो पासवान है and he's preaching his first message. और वो अपने पहला संदेश दे रहा है My heart wants to be there और मेरा हृदय वहाँ पर रहना चाहता है to see this. How God established him. और ये देखने के लिए किस रीति से परमेश्वर ने इसे स्थापित किया है। But I know something, even if I am not there, परंतु एक बात मैं जानता हूँ, यदि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं, Holy Spirit is there. पवित्र आत्मा वहाँ पर मौजूद है। You might have the desire for your children, आपके पास इच्छा होगी अपने बच्चों के लिए, for your family. आपके परिवार के लिए, God will establish it. परमेश्वर स्थापित करेंगे। You do what you can do, जो आप कर सकते हैं आप करें, and what you cannot do, God will do. और जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर करेंगे। You do your part. आप अपना भाग करें। I'm telling you, it is a privilege to serve the Lord. मैं आपसे कहता हूँ कि सौभाग्य की बात है परमेश्वर की सेवा करना। You may be the CEO of Microsoft. आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो सकते हैं, Praise God for whatever position He placed. और जो कोई ओहदा आपका है उसके लिए परमेश्वर को There धन्यवाद is है। no greater call than serving God. परंतु परमेश्वर की सेवा करने से बड़ी कोई And बुलाहट I नहीं tell है। you, as a man of God this morning, परमेश्वर के दास होने के नाते आपसे कहता हूँ, God has established the ministry. परमेश्वर ने सेवकाई को स्थापित God किया has है, established my family. परमेश्वर ने मेरे परिवार को स्थापित God किया has है, established my children. परमेश्वर ने मेरे बच्चों को स्थापित किया God है, has established my grandchildren also. परमेश्वर ने मेरे पोतों को भी स्थापित They किया है। love the Lord. वो परमेश्वर से प्रेम करते If हैं। God can do it in my life, यदि परमेश्वर मेरे जीवन में कर सकते He हैं, can do it in your life. वो आपके जीवन में भी कर सकते He हैं। doesn't love you any less. और वो आपसे कम प्रेम नहीं करते, He loves you a lot. वो आपसे बहुत प्रेम करते Are you हैं। willing? क्या आप तैयार हैं? Are you willing? क्या आप तैयार हैं? Let me pray for you right now. मैं इसी क्षण आपके लिए प्रार्थना करता हूँ।